uh, uh, I mean, it's been a great journey, in fact, working with several important stakeholders. So we started working with academia, we started working with judiciary, with government institutions on technical and capacity building initiatives, and now we envisage working with bar associations, with the bodies of lawyers. So, talking about the achievements, we were able to introduce a full course curriculum at two partnering law schools, Kinnaird and International Islamic University, both male and female campuses. And I do want to say, Ahmad Salman Saab, thank you for the great work you have you have done on the syllabus and course curriculum. It's actually a great contribution. Other than that, we continue to work with the judiciary to strengthen the court annex mediation program in Pakistan, in both Punjab and Sindh. And now we are moving forward towards uh, you know getting some work done on judicial reform agenda in collaboration with the Law and Justice Commission and the Honorable Supreme Court of Pakistan. Thank you. Thank you, Zishan. Um, we are going to introduce our speaker. We have two more speakers, Osam Malik and Ahmed Salman. And I would like to introduce Ahmed Salman sir. Ahmed Salman has over 26 years of experience in the field of learning and development and is an international subject matter expert in alternative dispute resolution. He has trained in the area at Harvard Kennedy School's program on negotiation, Queen's University Smith School of Business, Canada, and at ESSEC Business School, France, under some of the most influential names in the field. He's a member of the ADR Institute of Canada and the International Association of Conflict Management. Evan has been teaching and training in ADR for more than 15 years and has designed, developed, and delivered several modular programs in academia and industry in North America, Europe, Middle East, and Pakistan. As a practicing ADR professional, Salman is involved with the Asia Foundation's mainstreaming alternative dispute resolution for equitable access to justice, especially for marginalized people project. As an advisory board member and ADR curriculum consultant, he is currently affiliated with the University of Victoria, Dickinson University, Vancouver, the British Columbia Public Service Agency, and is board member of NUST Business School in Pakistan. Thank you so much, Ahmed Saab, for joining us. I am just giving you a minute or two to say something about this project, and then I'll be speaking about mediation as a main stream subject at the undergrad law degree in Pakistan. Thank you, Aisha, and thank you, Zishan. It's actually nice to connect with you after a while. COVID has kept us all indoors, and it's something that's happened over. Technology has allowed us to connect in this way. I'm really happy to be part of this session. This project, in fact, the first time I came to know about it was in 2016. I was visiting Pakistan for a conference, and I met the TAF team. And it was such an interesting thing that I offered to work with them in an advisory capacity. The idea was, of course, access to justice, and I'm a huge believer that disputes can be resolved in several ways. And one of the best ways to resolve them is to do it collaboratively. Of course, adversarial process that we see in the court is something that we are more used to, but we are also used to dispute resolution in our communities through community elders and community leaders. So that's not something that's new to our region, but we really need to connect with them. So, and this is a very interesting project where we have tried to bring about grassroots awareness and change. And I will stop here, and perhaps we'll throw some light on this as things move along as well. And I'm really, one more thing before I go, and that's the teacher in me. I can't let go of a podium once it's given to me. So one of the projects that we did was to develop a curriculum for the law schools. And I worked with the former Chief Justice of the Supreme Court, Justice Sadok, and it was really an honor to work with him and to develop this curriculum and also get
the input from all the law schools. Your school at Kinnaird has been at the forefront of this effort. We really appreciate that. That is why yours is the launch pad for our webinars as well today. Thank you very much, Aisha. Thank you, Evan Saab. Just to start this webinar, I would like to, because I'm from academia, so I'm going to focus on the issues, the enforcement mechanism, and the the challenges we are facing regarding the law degree. I always believe that the lawyers, the students, aspiring lawyers, they should have certain skills. As one of the scholar has outlined certain skills, that lawyering skills should involve problem solving, legal analysis and reasoning, which definitely we focus on when we are teaching at undergrad level. My focus is on undergrad level because not every law student goes for postgrad degree or for postgraduate study. Our nomenclature or our normal pattern is that whenever they finish their LLB degree, they go for practice in the field. So what are the challenges they face? So legal analysis and reasoning is something which they do study, which they have an idea, legal research, factual investigation, counseling of a client, negotiations, and ADR as an approach to dispute resolution of disputes, organization and management of legal work. When we chalk out certain things regarding that these skills should be in young lawyers and the people, the students who are just joining their field, we see a lot of loopholes in our degree, in our study plans. And that was the reason when Asia Foundation reached out to Nagar Hassan Law Department at Kinnaird. So we actually jumped on this opportunity to design and draft a curriculum on ADR with particular focus on mediation, because I always believe that it is really important. We are living in 21st century, but with what? Decades old syllabus of law, which, and I think our legal education system really needs to overhaul in terms of content as what we are teaching, and in terms of pedagogy as well as how we are teaching. So as we have now LLB 5 years program, so I believe that this kind of work with the special focus on mediation is really, really relevant and pertinent to today's world, to have a socio-legal approach to the law degree. Because this 5 years program is not only focusing on the core law subjects, but the other subjects as well. But we need to put more focus and more effort into it. I believe that today's law school should broaden the sense of legal education and not only to confine it to what we've been studying. What lacks in our education system is definitely the appreciation of changing attitudes in laws. Our curriculum seems to stuck with the same conventional adversarial system. We have trained our students in a way that they have only one thing in their mind, that when they go into the court, when they go in a field, litigation is the only thing they can do. Litigation is the only resort to a dispute settlement. There is no other way, because negotiation and mediation are never being taught at the undergrad level. और अगर कहीं ADR पढ़ाया भी जाता है अंडरग्रेड पे, पोस्ट ग्रेजुएट पे तो ये एक कोर्स है, बट उसका ज़्यादा फोकस आर्बिट्रेशन पे होता है. Again, the main point जिसकी वजह से हम इसको alternative dispute resolution कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है because mediation is not there. It's not that our lawyers are not ready to look into it, to practice it. The only issue we face is that they are unaware of the approaches and technicalities related to mediation. Acceptance का शायद issue नहीं है, लेकिन knowledge का या skills का जो है वो हमें issue नज़र आता है. Our lawyers are not fully equipped to understand the benefits of ADR. I'm particularly talking with reference to mediation. So when we introduce ADR, we focus on mediation as a subject at an undergrad level. And Ahmed Salman was the one who drafted that course.
So it actually, I could see that there was a difference in the attitude and behavior of a young students who wants to pursue law as a career. So litigation was not the only thing they went out uh, with with the mindset of, but they had this idea that negotiation and mediation is one of the things. I would say that things are not changing. We are here. We are doing a webinar on mediation. We got a lot of response, regarding this mediation. People appreciated it. People joined it. So I could see, and we all can see that there is a significant change within the legal services sector as well. You could see that the many law firms have just changed the name of the litigation department into dispute resolution departments. So the idea has been now working. Many universities, particularly in Australia and United States, have introduced mediation as a standalone subject in their degree. So we could see that it's there in the mainstream. Personally, जब भी मैं ADR की बात करती हूँ, तो we always get certain reaction by people that okay, this is alternative thing, so main thing is litigation. But one of the jurists rightly said that it should not be alternative dispute resolution, it should be appropriate dispute resolution. Because whenever there is a conflict, and Ahmed Saab is going to talk about conflict, that how conflict and dispute resolution work hand in hand. So वहाँ पे आपको अंदाजा होगा कि वाकई ये alternative नहीं होना चाहिए. This is not the correct name. It has to be appropriate dispute resolution. But I'm glad to see that mediation is now taking mainstream and center. In the later on in this webinar, my worthy colleague Osama Malik is going to talk about the laws and how the courts are working. So my focus is only that law schools should incorporate mediation as a standalone subject at the undergrad level. What does it do to you? क्या वो करता है आपके लिए? वो आपके लिए दो चीजें लेकर आता है. एक तो वो आपको skills provide करता है. And negotiation, mediation के skills, once you develop, everything is yours. You can convince your client, you can convince the judge, you can do anything. So once you master these skills. Dusra, it gives you an experiential learning. Because this is that kind of a subject which is not a rote learning, which we've been doing at the undergrad level. So my request to all the schools is that please mediation ko as a mainstream standalone subject ko introduce kare. Because as aapko, everybody is aware that Pakistan is introducing certain rules, certain laws, kuch pilot projects unhone start kiye, mediation centers ko leke, courts ko leke, judges ko train kiya, lawyers ko train kiya. So I think that that should start from the grassroots level and from the schools, because I don't see that lawyers are at fault, because they're still confused that what to pick up. As in litigation, जिसके लिए वो हमेशा से trained हैं, उसके लिए वो जाएंगे, या वो mediation को choose करेंगे, जो कि एक unfamiliar subject है to some extent to them. So these are the issues which we actually feel that we are having certain challenges regarding this lack of awareness. Also, I always believe in I reach out to school. There are so many practicing lawyers who have joined us. There has to be, and I think my worthy colleagues will also agree to it, that there has to be capacity building training for lawyers as well as for judges. हमें mediation को mainstream में लेकर आना है as dispute settlement resolution mechanism. And for that, we need to start from training, information, knowledge sharing, skills development, experiential learning. So that is more important. My personal experience of teaching mediation at the undergrad level has been wonderful. And we could do it because we don't follow a particular university curriculum. We have the capacity to mold our study plan, and we have introduced this as a major subject, not as an elective subject like other law schools. So I think, and one more thing I would, it's a lot of people who are listening to us, and I would like to request that there has to be an authoritative handbook should be prepared. Probably Sama later on will talk about it for the lawyers, that what are the process of mediation, how you can convince the client, how you can, make it work. So I believe that it is really important to have ADR
And I won't say that it's alternative dispute resolution. I will always say that it is appropriate dispute resolution mechanism. Litigation से हमें थोड़ा सा हटना चाहिए, अपने curriculum को थोड़ा सा हमें broad करना चाहिए. हम 21st century में रह रहे हैं. अब तो लोग ADR की जगह ODR भी start हो गया है, online dispute resolution. So I think for the benefit of the judiciary, for the benefit of ourselves, for benefit of lawyers, and for benefit of clients, we all have to save time and backlog जो हमारी courts में create हो चुका है cases का, उसको clear करना is really really important. I think I've exceeded my time as well, because when I talk about mediation, I have so much to talk about. So now our speaker, Emmett Salman, he will be speaking about different aspects of conflict, and of course the focus is mediation. Up to you, Emmett sir. Thank you very much. Just give me a second while I set this up. I hope you guys can hear me all right. We can. Isco, just trying to share my screen. And if this is going to work, let's see. Are you able to see the screen or not? Let me know when you can. We'll be able to see it in a second. It's yeah, there is a bit of a lag. Yeah. Bit of a lag there. Yes, we can see it now. You can. Okay. So, let me give you some context here. You guys have perhaps a lovely day right now. We are 12 hours apart, not 12 years apart. Come on. So that it kind of shows that this is almost close to midnight around here. तो रात के 12 बजने वाले हैं, तो अब आपको अगर मेरी कोई चीजें समझ आनी बंद हो जाए मेरी स्पीच में, तो please forgive me for that. That's something. I've had a long day already. जो image आप देख रहे हो, this I live in Victoria, British Columbia, and I'm privileged to have been here for a number of years now. And I work at the University of Victoria, as well as work with the British Columbian Public Service. So, and I just wanted to share some sites as well, just because, yes, it's past almost close to midnight here, but just to share where I am. This is just an image of our downtown. And my office is actually behind the Parliament building that you see on the left. So it's a very interesting and beautiful place. Not that our city of Islamabad or Lahore are any less beautiful. I don't want to take anything away from that. Some other visuals you will see just to keep you occupied, but I wanted to point out to a few things that we have seen, especially in the Quran. If there are two parties among the believers and they fall into a quarrel, make ye peace between them with justice and We can't hear you, Emmett sir. Can you hear Emmett sir? No, ma'am. No, ma'am. okay, can you hear me now? Yes. So, and can you still see the screen? No, there is no screen. No, Emmett sir. Okay, so somehow this is technical issues on my side. I hope you Yeah, can figure it's this coming up now. Okay. It's still not visible, but I think it's going to show up in a few seconds.
Okay. It's in the process, seems to be in the process. This is not fair. So it's just telling me that the internet connection is acting up right now. No screen is visible. The screen is visible now? Yes. Okay, awesome. So And we can I hear think you as well. I think we can. Okay, awesome. So this is good to hear. So जहाँ से हमने शुरू किया था ये था कि I was just trying to refer to what the Quran says on this, and perhaps if you can see the screen, you can read as well. So I don't want to be wasting your time on reading, but just remind you that this is part of our religion as well, that we have to make an effort to resolve those disputes, right? So that's the idea that is behind this. So I have a question for all of you. My question is, and I want you to reflect on this, and maybe in the chat sections, wherever you are, you can write these. आपके ख्याल में conflict होता क्या है और उसको कैसे define किया जा सकता है? And I'd like you to think about this for a minute, or maybe, and just think, conflict है क्या? What is it? हम कैसे define कर सकते हैं और क्या dimensions हो सकती हैं जिसमें हम कहेंगे जी ये conflict है? तो थोड़ा सोचिएगा इस पे। डॉक्टर साहब आपको अपना म्यूट करना पड़ेगा, डॉक्टर अता। थैंक यू। तो आई एम श्योर यू आपको कुछ जो है आपके जहन में चीजें आई होंगी। आप ये देखिएगा, मैंने एक स्लाइड आपके सामने, दिस इज बेसिकली नोन एज मूड्स सर्कल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो हमें बताता है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो 4-5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली जो पहला कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं वो एक इंटरेस्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसमें परसीव्ड या एक्चुअल कंपटीशन हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर, जिससे होता है। स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, वैल्यूज़ के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या वैल्यू के कॉन्फ्लिक्ट हैं कि हमें हमारे जहन में चीज़ों की असेसमेंट्स या उनकी वैल्यूज़ जो है वो हम रिकंसाइल नहीं कर पाते और उसकी वजह से वी कांट कम टू एन एग्रीमेंट। रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स शायद हम ज्यादा कॉमनली देखते हैं, और ऑफ कोर्स डेटा के कॉन्फ्लिक्ट, या तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है या बिल्कुल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे अराइज होते हैं। और जब हम ये देखते हैं तो ये एक आपके सामने मैंने एक विजुअल डाला है। ये हम भूल जाते हैं कि देयर आर ऑलवेज 2 sides to every story, always. Maybe sometimes there are more than 2 as well. So if there's a conflict between me and someone, maybe Zishan or Aisha, that we saw, so it could be about one would be my version of the conflict, one would be Aisha's or Zishan's version of the conflict, and what could be the real story in that there conflict में वो क्या रहा है। और हमें जो है वो बड़े challenges होते हैं, conflict मुख्तलिफ stages से गुजरता है, और शुरू में ऑफ कोर्स वो जो है ऐसी सिचुएशन में नहीं आता, लेकिन एक वक्त आता है कि वो विजिबली सामने आ जाता है, और उसके विजिबली सामने आने की वजह से आपको फिर कुछ ना कुछ, या तो आप कुछ भी ना करें, आप उसको करने दें, और उसके नताइज जो हैं वो जो है उसके जिम्मेदार कई दफ़ा भी हो सकते हैं, कई दफ़ा कुछ आप हालात को भी ठहरा सकते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि इवेंचुअली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको कोशिश करके या हालात में या किसी तरह से वी नीड टू लीड इट टुवर्ड्स ए रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के लिए हम किस तरफ जा सकते हैं? हम फॉर्मल मींस की तरफ जा सकते हैं रेजोल्यूशन की तरफ, हम इनफॉर्मल मींस की तरफ जा सकते हैं। और इनफॉर्मल मींस जो हैं वो ऑफ कोर्स हम काफ़ी सारे, लेकिन फॉर्मल मींस भी हैं, और लेकिन फॉर्मल मींस की वजह से ही कई दफ़ा वो कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन डिले भी हो सकता है, बिकॉज जो प्रेशर्स आते हैं या वो उसमें और चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे वी हैव दोज इश्यूज।
जो एक चीज जिसको आपके सामने मैंने अभी रखा है, this is known as the conflict iceberg. What we see on the surface may not necessarily be the actual conflict, and it could be something else driving that conflict. What we see are the consequences of something happening. We see the impact of those events. We see the interactions. We see the don't see is the emotions or the values behind that. We don't see the different agendas that people have. We are not able to identify the structural or cultural systems or the power of the personality dynamics that come into play there. The environmental pressures to resolve those conflicts. And we sometimes are distracted from the actual issue and might be focusing on something entirely different in this regard. So it's more like an onion. You need to identify and you need to peel different layers when you're looking at this, and to get to the root or the crux or the core of the onion to really find out what is that issue that we're trying to address. And we find out that mostly and invariably we have basic human needs at the core of a conflict. That is what is not being addressed. So you might already be familiar with different hierarchy of needs models, like the Maslow one of the most popular ones, that does address about physiological or psychological or belonging needs, and then we have aesthetic needs. But that it actually also is about achieving your potential. But if you look at this is also kind of a representation of that particular model there as well. Within this, what we also see is, and I don't know if you can see this clearly, and I've talked about this before, what causes those conflicts? So the conflict could be coming from intolerance. It could be coming from poor communication. It could be coming from needs not being met. It could be the outcome of a prejudice. It could be challenging of values that you hold dear. There's a lack of compromise. You're making assumptions. You're not clear. You have a desire for power, or someone else has a desire for power. That's something that happens. There is obviously a lack of empathy. There is ignorance on either party's side, or it could be multiple parties as well. Why should we limit it to two? There are, of course, self-interests that come into play there, and the consequences of those conflicts can be really brutal, and the stakes are really high. Sometimes it could be a very minor thing that could lead to a very big conflict, or it could be a very big thing that could lead to that may not even lead to something. So when we talk about appropriate dispute resolution, ये चीज समझनी पड़ेगी कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं. हम एक ऐसी सोसाइटी में जो लिटिगेशन की ऑप्शंस पे शायद ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं कोर्ट सिस्टम्स के अंदर. मे बी somebody who has power, they realize that they have the potential to get that. तो ADR का जो कॉन्टिन्यूम है उसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं. उसमें नेगोशिएशन भी है, उसमें मीडिएशन है, उसमें आर्बिट्रेशन है, उसमें ऑफ कोर्स लिटिगेशन है. और आप अगर देखें इसके अंदर तो आपको नजर आएगा कि ये हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोल किस में ज्यादा है. अगर आप नेगोशिएशन या मीडिएशन की तरफ जाते हैं तो आपका कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन के ऊपर शायद ज्यादा है बनस्बत इसके कि आप आर्बिट्रेशन लिटिगेशन की तरफ जाएं, जहाँ पे पार्टीज जो हैं वो अपना कंट्रोल गिव अप करती हैं और किसी और ने फैसला करना है. वो जज भी हो सकता है, वो एक मीडिएटर भी हो सकता है, वो आर्बिट्रेटर भी हो सकता है. उसमें ऑफ कोर्स अब सवाल ये पैदा होगा कि जी आर्बिट्रेशन जो है वो क्यों प्रेफर्ड ऑप्शंस होती हैं, बट दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. हम कोशिश करेंगे कि इसको स्लाइटली टच करें. तो ये एक मॉडल थॉमस किलमन का और इनफैक्ट केनेथ थॉमस का और रैल्फ किलमन का जो मॉडल है ये बहुत ज्यादा साइट किया जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर. और उसमें ये कहते हैं कि देयर आर यूजुअली अबाउट 5 सिनेरियोज इन एनी कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हम किसी भी तरफ जा सकते हैं. आगे एक विजुअल और आएगा जो इसको काफी हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता है. आप लोगों को याद होगा कि 2004 में शायद परवेज मुशर्रफ
headed to India to resolve the Kashmir conflict. And he came back not having gotten anything. Where do you think he was on this continuum? किस quadrant में fall करते हैं? And I would like to see your responses on the chat here. अगर आप सोचें इस पे तो ये देखें कि मैं थोड़ा सा इसमें ये बताता हूँ कि एक जगह पे कोऑपरेटिवनेस है या कोऑपरेशन है, दूसरी तरफ असर्टिवनेस है. अगर एक पार्टी जो है वो अनकोऑपरेटिव होती है और अनअसर्टिव होती है तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं. अगर एक पार्टी कोऑपरेटिव होती है लेकिन असर्टिव नहीं होती तो वो क्या उसको मिलेगा. एक पार्टी जो है वो असर्टिव होती है और उसी तरह वो अनकोऑपरेटिव होती है तो तब क्या होगा. और एक पार्टी जो है वो असर्टिव भी होती है और कोऑपरेटिव भी होती है तब क्या सिनेरियो है. और बीच में what happens. And this is something that plays out every day in front of us. तो मैंने जो है इसमें जो सिचुएशन थी जहाँ पे मुशर्रफ साहब वापस आए. आई डोंट नो साहब कहने पे शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं. तो where do you think he came back? किस वाले में आया? He was trying to cooperate, but he may not have had the assertion over the other party, right? Or the other party was uncooperative even when he was assertive. So हम अगर देखें तो या तो वो competing में आएगा या वो avoiding में आएगा या accommodating में आएगा, right? End result क्या था? Did anybody get anything? We ended up losing much, right? So avoidance वाले जो है उसमें चले गए, जो कि lose सिनेरियो कहलाता है. आइडियली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए कहा यह जाता है कि आप ऐसे उसको रिजॉल्व करें कि दोनों पार्टीज दे वॉक अवे थिंकिंग कि इट्स ए विन विन फॉर देम, जो कि बहुत कम होता है, especially in litigous process जो है. We are getting some answers in chat box if you can see them. I can see some of them. I see 2 or 3 responses, Aisha, there that yes, people have said, and that's why I wanted to sort of clarify this. That this is a very interesting model to keep in mind when you're thinking about resolving a conflict, right? कि आप उसमें अचीव क्या करना चाह रहे. तो ऐसी सूरत में अभी तक मैंने ये जो है ये नहीं किया कि ये कहूँ कि जी इसमें कौन सा बेहतर होगा मॉडल, लेकिन ये है कि मल्टीपल अप्रोचेस जो है वो सामने आती हैं हमारे. और आइडियल परस्यूट ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो वो कोलैबोरेशन का है कि कोई भी नाराज ना जाए, सारे खुश होके जाए. कम होता है लेकिन यहीं पे हमारा जो फोकस है, इसीलिए मैं फिर मीडिएशन की तरफ लाऊंगा. तो and that's why I said कि mediation itself क्या है. Mediation is actually assisted negotiation जिसमें थर्ड पार्टी न्यूट्रल होगा, जिसके पास आइडियली उसको सिर्फ प्रोसेस को लेके चलना है कि जी किसी तरह से लोग एग्रीमेंट की तरफ आ जाए. कैसे लेके चलना है उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन जो ये एक थॉट है, ये जरा से ध्यान में रखिएगा. और मैं जब सेकंड हाफ ऑफ आवर डिस्कशन वापस आऊंगा इस पे, तो दैट इज व्हेन वी कैन स्पेंड अ बिट ऑफ टाइम ऑन दिस कि ये असिस्टेड नेगोशिएशन क्यों है. और दूसरी चीज, आप सारे लॉ प्रोफेशनल्स हो माशाल्लाह से, अगर आपने मीडिएटर नहीं भी बनना ना बनना, खैर हमारी कोशिश होगी आपको कन्विंस करेंगे, इसको आप सोचें. लेकिन अगर नहीं भी बनना तो what is the advantage of actually getting to know a bit more about this? आपको कहाँ ये फायदा दे सकता है कि कौन सी ऐसी स्किल सेट्स आप डेवलप कर सकते हो, कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सकते हो इस किस्म के प्रोसेस में जाके, जो कि आपको आपके प्रोफेशन में कहीं और भी काम आएगा. दूसरा सवाल जो मैं आप लोगों के लिए अब छोड़ने लगा हूं इसमें वो ये है कि ये सोचिए
हर कोई अपने आप को ये समझता है कि जी मैं अगर लीगल प्रोफेशन में आ गया हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो मुझे कैरी करेंगी और मुझे सक्सेस भी देंगी। तो अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन में ये देखिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं इस वक्त, और ये सोचना जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आप इस वक्त क्या इतने स्किल्ड हैं कि आप लोगों को अपनी बात पे ला सकें। तो ये जरा सोचिएगा। ये दो सवाल आपके लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। मैं आयशा को वापस जो है आई वांट टू ब्रिंग हर इनटू द डिस्कशन बिकॉज वी हैव द ऑनरेबल उसामा हियर। उसामा मलिक इज वन ऑफ द सुपरस्टार्स। मैं बड़ा ईगरली फॉलो करता हूँ इन्हें, इनके सोशल मीडिया पे भी, इनके जो है देखता हूँ कि ये कितना काम कर रहे हैं। बाकी आयशा, ओवर टू यू, यू नीड टू इंट्रोड्यूस उसामा। Thank you, Ahmed Saab. Thank you for such a great insight into conflict and just invoking the thought process and brainstorming. Osama Malik is our next speaker. Osama Malik is an advocate of high courts and partner at HCU and a leading law firm based in Lahore and Islamabad. Additionally, Osama is the chairperson of the International Legal Affairs Committee, Lahore High Court Bar Association. He holds a master's in international development law from the University of Warwick. And other than what I have said, Osama is doing a lot of other work. He's always busy and he's doing a really good work. And he's a face of young lawyers. So one of the reasons that Osama has joined us is to talk about that what are the mediation laws in Pakistan and what is the perspective of lawyers regarding this mediation laws and the pilot project which has been running in Punjab. Over to you, Osama. Thank you for having me, Aisha, Salman, and the Asia Foundation. All this initiative by the Asia Foundation and the Kinnaird College both have collaborated for this wonderful thing. Or I think that mediation and ADR is the future of litigation. Because all over the world, litigation ko ab more or less they are moving away from litigation and going towards ADR. Because ADR is an alternate dispute resolution, या जैसे Aisha just mentioned, it's more properly called appropriate dispute resolution. तो I think इसका फायदा ये होता है mediation, AD, arbitration, conciliation. ADR encompasses a lot of things. तो over here we are focusing primarily on mediation. तो यहाँ पे बात ये है कि मीडिएशन और एडीआर को लेके पाकिस्तान में a lot of people might not know, और especially the litigants and most of the lawyers as well, कि Pakistan has progressed a lot in the past 2-3-4 years ADR को लेके, और ADR पे काफ़ी ज़्यादा laws भी आ चुके हैं, especially in Punjab, Sindh and the Islamabad capital territory. तो इस पर मैं बारी बारी करके ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन से लॉज आ चुके हैं और कौन कौन सी तब्दीलियां उन लॉज के थ्रू आ चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले तो ये कि आई थिंक जो एडीआर एक्ट आया 2017 का, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एडीआर एक्ट, लेकिन वो सिर्फ इनकम्पास करता था इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को। एडीआर एक्ट में एडीआर को डिफाइन किया गया है एज एनीथिंग व्हिच रेंजेस फ्रॉम आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, और आगे ये भी लिख दिया कि इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट, और भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट जो कि एडीआर एक्ट को लेके आए। और उसके बाद पंजाब में पिछले साल 2019 में एडीआर एक्ट आया जिसको हम कहते हैं पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019, और ये एक्ट जो है बड़ा ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन है आई मस्ट से। और इस एक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी गई हैं कि किन किन मामलात में आप जो है एडीआर को रेफर कर सकते हैं। और इसका सेक्शन 3 जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाब एडीआर एक्ट 2019, उसका सेक्शन 3 बताता है कि कौन कौन से केसेस हैं जिनको आप जो है एडीआर को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आ जाते हैं मेनली 2 शेड्यूल दे दिए गए विच आर अटैच्ड टू द एक्ट। शेड्यूल 1 में देयर इज अ लिस्ट ऑफ केसेस जो कि एडीआर को रेफर हो सकते हैं, और जजेस पे ये उन्होंने ऑब्लिगेशन डाल दी कि विद इन 30 डेज जब एक केस फाइल होता है और डिफेंडेंट हैज एंटर्ड अपीयरेंस इन दैट केस, तो विद इन 30 डेज उस टाइम पीरियड के वो जो मामला है वो एडीआर को रेफर कर सकते हैं। बट एडीआर एज आई सेड इट्स नॉट कंपल्सरी, ये पार्टीज पे डिपेंड करता है और पार्टीज का एग्रीमेंट
and the parties' willingness to resolve their disputes by ADR, ये this is of paramount importance, क्योंकि parties की willingness के बगैर ADR को refer नहीं हो सकते मामला। तो within 30 days आपका मामला अगर refer हो गया, if both the parties are willing, उसके बाद जो है अगला प्रोसीजर कि ये भी टाइम पीरियड दे दिया गया है ADR एक्ट पंजाब वाले की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि within 60 days, within 2 months आपका जो ADR, जो भी आपकी मीडिएशन आप करेंगे, मीडिएशन पे ज्यादा फोकस है हमारी कोर्ट्स का भी, कि इफ यू ऑप्ट मीडिएशन तो विद इन 60 डेज इसका फैसला आ जाना चाहिए, और फैसला फिर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फिर अप्रोप्रिएट जजमेंट या डिक्री पास करेगा ऑन दैट एस्पेक्ट। उसके बाद क्रिमिनल केसेस में भी ADR का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, मतलब अब एक्ट आया पिछले साल और होना शुरू हो जाएगा, अभी कुछ मामलात में हो गया है। तो सेक्शन 4 जो है पंजाब ADR एक्ट का, वो बताता है कि क्रिमिनल केसेस जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं अंडर सेक्शन 345 और CRPC, उनको आप रेफर कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन बाय एन इंडिपेंडेंट मीडिएटर और कंसिलिएटर, जौन सी भी आप ADR ऑप्ट करते हैं, ठीक है। येट अगेन यहाँ पे फिर से पार्टीज की कंसेंट जो है बड़ी जरूरी है, और उसके बगैर मामला आगे नहीं चल सकते। तो ADR बेसिकली ना सिर्फ सिविल केसेस में, बट इट कैन बी यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस एज वेल। और ये एक्ट आने से आई थिंक इट्स अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि जब एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन आ गई, और इसके अंदर आगे मैं बताऊंगा कि इस एक्ट के अंदर प्रॉपर रूल्स भी फ्रेम हो चुके हैं इसी साल अप्रैल में 2020 में, जिनको हम ADR रूल्स कहेंगे 2020। और इन रूल्स के फ्रेम होने से बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आ गई है, और आई थिंक अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी आहिस्ता आहिस्ता, अब मामला इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है और उसके साथ साथ अवेयरनेस की तरफ जा रहा है। तो थोड़े से मैं केसेस की लिस्ट जरा बता दूं जो कि आप रेफर कर सकते हैं ADR को। उसमें आ जाते हैं आपके फैमिली डिस्प्यूट्स, जिसमें गार्डियनशिप केसेस आ जाते हैं, कस्टडी ऑफ माइनर आ जाती है, उसके बाद केसेस रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ मनी, केसेस रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस, डिक्लेरेशन, सक्सेशन, और यहाँ तक कि आप ट्रेडमार्क और कॉपीराइट केसेस और सूट्स अंडर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, वो भी आप ADR को रेफर कर सकते हैं अंडर दिस न्यू एक्ट। So this act basically provides a comprehensive piece of legislation जिसके अंडर आप आगे कोर्ट्स की मदद से ADR कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के आने से पहले भी ये मैं बैकग्राउंड देता चलूं कि हमारी लाहौर हाई कोर्ट, हैट्स ऑफ टू लाहौर हाई कोर्ट, जिन्होंने कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन की तरफ बड़ा जोर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मंसूरी शाह साहब। ही इज नाउ सर्विंग एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने इस पे बड़ा फोकस किया, और उनकी बड़ी कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें अब इस पेंडेमिक के बाद काफी अरसा तो कोर्ट्स बंद रहे हैं और लास्ट वीक से दोबारा से नॉर्मलाइज होना शुरू हुई हैं चीजें। तो इससे पहले भी, इवन बिफोर दिस पेंडेमिक, द वर्कलोड एंड द केस जो पेंडेंसी थी, वो आपकी फ्रॉम द राइट डाउन टू द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, वो आपकी हजारों में है। और वो पेंडेंसी जो है वो इस तरह सिर्फ कोर्ट्स नहीं खत्म कर सकते जब तक आप ADR की तरफ नहीं जाएंगे। तो आई थिंक कोर्ट्स की भी और हमारी सुपीरियर जुडिशरी की भी यही माइंडसेट था दैट दे वांटेड टू मूव इन दैट डायरेक्शन जहां पे ADR को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। तो जो उन्होंने मंसूरी शाह साहब के टाइम पे एक मीडिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, उन्होंने डेजिग्नेटेड सेंटर्स बना दिए थे मीडिएशन के ऑल ओवर पंजाब, और 36 डिफरेंट मीडिएशन सेंटर्स बने थे पंजाब में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। और उसका मैं जो फिगर्स देख रहा था, दोज वर अस्टाउंडिंग, के पता ये चला कि 2017 से, जून 2017 से लेके जनवरी 2019 तक टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि इन 36 सेंटर्स में मीडिएशन को रेफर हुए, और यहाँ पे मीडिएटर्स जो थे वो जजेस ही थे, दे वर ट्रेन्ड सिविल जजेस हु वर ट्रेन्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 30,000 इन द पास्ट 2 years रेफर हुए मीडिएशन की तरफ, और उसमें से 14,000 केसेस, दैट्स अ ह्यूज नंबर, मतलब ऑलमोस्ट हाफ द केसेस, 50% ऑफ द केसेस वो सक्सेसफुली मीडिएट हुए और उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई। दीज आर द फिगर्स ऑफ द ऑफिशियल फिगर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। तो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और दूसरी बात ये कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आप ADR जब एक्ट भी आ गया और उसके अंदर रूल्स भी फ्रेम हो गए, तो आई थिंक लॉयर्स एंड दे मस्ट फैसिलिटेट देयर क्लाइंट्स एज वेल, कि क्लाइंट्स को भी वो कन्विंस करें कि ADR की तरफ जाना इज एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स। क्योंकि कोर्ट्स में, एज वी ऑल नो, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें अपील का प्रोसेस भी है। इवन दो आप सिविल कोर्ट से 10 सालों बाद केस जीत जाएं, उसके बाद आपकी हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन चली गई, उसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट में चली गई,
तो आपकी जिंदगी में मुश्किल है चीजों का फैसला होना। तो ADR आई थिंक इज अ स्पीडी वे, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट भी सेट कर दिया गया, और मीडिएशन जो है, मीडिएशन का प्रोसेस वो बड़ी जबरदस्त तरीके से माय वर्दी कोलीग अहमद हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दैट। तो वो जो प्रोसेस है वो बड़ा एक्सपीडिशियस है और इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। तो वकीलों को ये थोड़ी सी होती है हेजिटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल पर्सपेक्टिव, जो लॉयर्स कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं कि शायद हमें फी ना मिले, या अगर हम ADR में चले गए तो हम फिर कैसे पैसे कमाएंगे। लेकिन इस एक्ट के आने की वजह से और इनके अंदर रूल्स फ्रेम होने की वजह से ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ऑफ द हाई कोर्ट वो मीडिएटर्स बन सकते हैं, एक्रेडिटेड मीडिएटर्स बन सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जब आप मीडिएशन पे भी जाते हैं तो उस पे आप खुद भी अपना केस, क्लाइंट खुद भी अपना केस लेके जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स दे विल गो थ्रू देयर अटॉर्नीज। और वो अटॉर्नीज कौन होंगे? जी जी जी। एक सवाल जो मेरे ख्याल में वो आ भी रहा है इस वक्त, थोड़ा सा मैं आपको सॉरी रोका है इस पे। ये बताइएगा कि कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जी जी, उसमें सेटलमेंट को बाइंडिंग करने का क्या तरीका है? उसमें एक कोर्ट नेक्स्ट जो मीडिएशन है उसके बाद वो जजमेंट मिलेगी, जो भी सेटलमेंट हो जाएगी कोर्ट विल फॉलो ऑन विद द जजमेंट। जैसे ADR एक्ट है 2019 का, इसने भी कहा जो भी सेटलमेंट होगी आइदर यू गो, क्योंकि मीडिएटर जो है दैट्स ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज, जिसको वो एक बंदे को चाहेंगे वो मीडिएटर बना सकते हैं, वो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं या वो कोर्ट पे छोड़ सकते हैं कि वो किसी को मीडिएटर अपॉइंट कर दे, ठीक है। एंड वंस अ मीडिएटर इज अपॉइंटेड, और जो भी उनकी सेटलमेंट होगी उसका एक प्रॉपर उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, क्योंकि मैं बताया इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन, तो उन्होंने उसका एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है अंडर द रूल्स कि आपने किस तरह मीडिएशन का जो डिसीजन है वो रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद आपने कोर्ट में उसे लेके जाना है, और कोर्ट में जाके कोर्ट जो है उस मामले पे, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर एज वेल, उस डिसीजन, उस सेटलमेंट की बेस पे अपनी जजमेंट देगा। तो दैट विल बी अ बाइंडिंग पीस ऑफ जजमेंट। जैसे आप एक अपने कोर्ट केस आपका पूरा चलता है और उसके बाद एक कोर्ट जजमेंट या डिक्री देता है, तो उसी तरह वंस अ सेटलमेंट हैज बीन रीच्ड तो कोर्ट को रेफर किया जाएगा वापस मामला, और कोर्ट जो है जो भी रेलेवेंट कोर्ट होगी वो अपनी उस मामले में बाइंडिंग जजमेंट देगी। और इसमें एक मजे की बात ये कि जब एक बाइंडिंग जजमेंट आ जाएगी तो सेक्शन 15 जो है ADR एक्ट का 2019 का, वो स्पेसिफिकली कहता है कि नो रिवीजन और अपील शैल लाई फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर दिस एक्ट। मतलब एक बार जब आपकी सेटलमेंट के अंडर आपकी वो आ गई, डिग्री आपकी डिक्री आ गई और जजमेंट आ गई, तो उसको आप अपील भी नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स अ बाइंडिंग पीस ऑफ थिंग, क्योंकि नॉर्मली जो आपके केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से दैट्स अ मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे कि एक बाइंडिंग जजमेंट भी आ जाएगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपकी सेटलमेंट होगी उसकी बेस पे। और इस पे सिंध और पंजाब ने आई थिंक इस मामले पे लीड ली है। सिंध ने अपना कोई इंडिपेंडेंट ADR एक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, उसमें दे हैव इम्प्लीमेंटेड एन अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट एक्ट आया था CPC का सिंध असेंबली से 2018 में, जिसमें उन्होंने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, जो कि सिविल की जो प्रैक्टिस करते हैं, सारा आपका जो सिविल प्रोसीजर है, किस तरह आपने केस करना है, दैट्स इन द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके एक नया सेक्शन 89A ऐड किया, जो कि ये ADR की बात करता है कि कोर्ट्स जो हैं वो रेफर कर सकते हैं केसेस इधर मीडिएशन को या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ADR को। तो आई थिंक पंजाब और सिंध में काफी हद तक ADR की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगेन हैट्स ऑफ टू एशिया फाउंडेशन एंड कनेट कॉलेज, जिन्होंने ये, क्योंकि इसी तरह अवेयरनेस आएगी। जैसे मैंने बात की, ज्यादातर बातें जो मैंने अभी तक की वो मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्मल शायद वकीलों को भी पता हो, ठीक है, मेजॉरिटी, और लिटिगेंट्स को भी पता हो कि ये अब आ गया है, इस तरह इसके थ्रू आप जो है अपने केसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं या करवा सकते हैं एफिशिएंटली। तो आई थिंक अवेयरनेस, येट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक उनकी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होगी, अवेयरनेस के साथ साथ वो जो लॉयर्स हैं, जो मीडिएटर्स हैं, जो कि जजेस हैं जिन्होंने केस रेफर करने हैं, जब तक उनकी आप ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो यही है कि वी आर मोर कस्टम टू द एडवर्सरियल फॉर्म ऑफ लिटिगेशन, जो कि हमारे नॉर्मली कोर्ट्स में होता है, तो हम उस तरफ सोचते ही नहीं है। तो जब तक अवेयरनेस और ट्रेनिंग हम इस चीज में नहीं लाएंगे तब तक मेरे ख्याल से मामला आगे नहीं चलेंगे। आई थिंक द रोल ऑफ बार एसोसिएशंस एंड द बार काउंसिल्स इन दिस रिगार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और उनके साथ
कोलैबोरेशन के साथ जब तक हम इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि बार काउंसिल्स एंड बार एसोसिएशंस ऑल ओवर पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, दे आर द रिप्रेजेंटिंग बॉडी ऑफ लॉयर्स। तो जब तक वहां से चेंज नहीं आएगी तब तक आपको हमें रेजिस्टेंस मिलता रहेगा ग्राउंड लेवल पे, इवन दो रिजल्ट्स आर बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और सब कुछ बड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस एक्ट के आने के बाद भी इतना ज्यादा यूजेस जो है वो नहीं हो रहा एडीआर की तरफ। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, दुनिया भर में तो बड़ी देर का यूज हो रहा है, लेकिन लकीली अब पाकिस्तान में भी हम ये लेके आ रहे हैं मामला। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एक सवाल ये मेरे ख्याल से किसी ने पूछा है कि हाउ टू बिकम अ सर्टिफाइड मीडिएटर इन पाकिस्तान। ये जी अंडर द रूल्स, एडीआर रूल्स 2020, उन्होंने क्वालिफिकेशन दे दी है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस जिसके अंडर आप एक्रेडिटेड मीडिएटर बन सकते हैं। उसके लिए 3-4 लोग बन सकते हैं। एक तो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन सकता है। उसके अलावा सिविल सर्वेंट ग्रेड 17 से अबव का रिटायर्ड वो बन सकता है। उसके अलावा एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट विद एन एक्टिव प्रैक्टिस ऑफ 10 ईयर्स, वो भी एक्रेडिटेड मीडिएटर बन सकते हैं। और जब आप एक्रेडिटेड मीडिएटर बन जाते हैं तो आप अपना एडीआर एक्रेडिटेड सेंटर भी खोल सकते हैं। जैसे अब नए ये इट्स न्यू कॉन्सेप्ट एज वेल खुलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगर पार्टीज जो हैं आपस में केस में किसी मीडिएटर या किसी कंसिलिएटर पे एग्री नहीं करती, देन द कोर्ट्स कैन रेफर द मैटर टू एन एडीआर सेंटर जो कि एक्रेडिटेड होगा अंडर द रूल्स। तो आई थिंक ये ग्रेजुअली पूरा जो एक तरह से स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हो रहा है साइड बाय साइड, और बट आई एम होपफुल एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। Thank you, Osama. Aisha, yeah. आई थिंक उसामा ने जो बातें उसामा कह रहे थे वो बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस भी आए थे और वो ऑटोमेटिकली ही आपने कवर कर दिए, यू नो। बाकी यू आर राइट कि बहुत सारी बातें जो आप कर रहे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स को भी नहीं पता, एंड बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस एंड बिकॉज इट्स नॉट दी, यू नो, आई वोंट से कि उनका भी कसूर है, बट बात ये है कि हम एक लिटिगेशन या एडवर्सरियल सिस्टम में इतने ज़्यादा पैक्ड हैं कि हम और किसी चीज़ को नहीं देखते। And one more thing is, like, of course, due credit given to Justice Mansoor Ali Shah, because ये उन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ, and जब हमने ये मीडिएशन को और ADR को लिया with the Asia Foundation, so you know वो उन्हीं की एक मोटिवेशन और इनकरेजमेंट थी। तो इट वाज रियली गुड टू सी कि जुडिशरी भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और लॉयर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क उसामा, बिकॉज कुछ तो आपने जवाब दे दिए हैं। One of the person has asked audience may say that in a country like Pakistan, a party with access to more resources tends to get the other party to agree to a settlement. Do you not think that there is an element of unfairness in the process of mediation? देखिए मीडिएशन में सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये कि इफ बोथ द पार्टीज डोंट एग्री ऑन अ स्पेसिफिक मीडिएटर या मीडिएटर सेंटर, मीडिएशन सेंटर या एडीआर सेंटर, ठीक है, तब तक वो जो है आपका कोई भी मीडिएटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स एन एडवांटेज कि जब तक आप जो है दोनों पार्टीज एग्री नहीं होंगी, जब दोनों पार्टीज एग्री होंगी और अपना फेथ किसी बंदे में या किसी इदारे में रखेंगे कि ये हमारा मामला सॉल्व करा सकता है, तो आई थिंक दैट्स मोर ऑफ एन एडवांटेज, ना कि जैसे कोर्ट केसेस में होता है कि कोर्ट केसेस में तो यू आर एट मोर डिसएडवांटेज आपका ज्यादा होता है, क्योंकि एक पार्टी जो है जिसके रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वो एक जैसे कहते हैं तगड़ा वकील कर लेते हैं भारी फीस देके, और जिसके रिसोर्सेज नहीं होते वो बेचारे जो हैं वो नहीं कर सकते उसका मुकाबला। तो आई थिंक वहां से अगर आप सिचुएशन कंपेयर करें तो एडीआर इज स्टिल और मीडिएशन इज स्टिल फार बेटर, जहां पे पार्टीज जो हैं वो अपनी मर्जी का तो एटलीस्ट उनकी मर्जी तो शामिल होती है कि वो जो है उस पे जाएं। और येट अगेन कि अगर सेटलमेंट दोनों पार्टीज का दोनों पार्टीज की रजामंदी जिसे हम कहेंगे ना हो, तब तक देयर इज नो बाइंडिंग सेटलमेंट, ठीक है। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द कोर्ट केस यू वर फाइटिंग बिफोर, तो उसमें देयर इज नो कंपल्शन कि आप सेटलमेंट पे एग्री करो, दैट होनली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने एग्री करना है कि नहीं करना। So I think that answers the question Aisha just asked. Can I jump in as well? Sure. Yeah. So ये देखिएगा कि एक तो कौन से वाले केसेस हैं, यार ये जहन में रखिएगा ये सवाल, and we don't have to answer it right away, it will emerge. कौन से वाले केसेस हैं जो मीडिएशन के लिए सूटेबल हैं? Are these civil cases या criminal cases? और हम उसामा की तरफ अभी ये जाते हैं इसमें, या इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? एक तो ये, दूसरा
इसमें जब हम ये बात करते हैं तो मीडिएटर का रोल या मीडिएशन का बाइंडिंग होना, ऑफ कोर्स हमने उसको लॉ में ये कवर किया कि उसके लिए हम उसको कोर्ट में जाके उसके लिए डिग्री लेंगे, राइट? प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द दिस एस्पेक्ट कि जी ये एज ए प्रोफेशन एस्टैब्लिश हो, इसी पे एफर्ट हो रही है ना, तो वो एस्पेक्ट्स जो है, तो अब ओवर टू यू, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस, और हम फिर इसके बाद we will move the program Salman sir, if you're talking about the cases, which cases are more suitable, the kind of cases जो कि ADR को refer किए जा सकते हैं, those are already mentioned in the ADR Act 2019. उसके Schedule 1 refers to 14 type of cases जो कि हम ADR को refer कर सकते हैं, जिसमें ये आप जाके it's online as well. जो भी हमारे सुनने वाले हैं who wants to know कि कौन कौन से exactly cases जाते हैं ADR में, वो ऑनलाइन जाएं और ADR Act 2019 को खोलें. इट्स रेडिली अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट एज वेल. उसका शेड्यूल 1 बेसिकली बताते हैं 14 टाइप ऑफ केसेस, और शेड्यूल 2 में फिर 7 तरह के केसेस हैं, जिसमें तमाम, आई थिंक मेरे ख्याल से इट्स वेरी वाइड रेंजिंग, जिसमें तमाम तरह के केसेस कवर हो जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम फैमिली डिस्प्यूट्स टू रिकवरी ऑफ मनी टू बैंकिंग suits under the Banking Companies Ordinance and trademark disputes, copyright disputes, transfer of property act 1882 के अंदर जो redemption के cases होते हैं वो, उसके बाद cases relating to commercial contracts वगैरह. तो it's a very wide ambit जहाँ पे ADR जो है apply हो सकती है, and it's written down in the act. ठीक है, तो it's a binding piece of legislation कि इन cases में if the other party agrees as well, तो judge is under an obligation कि वो आपका case जो है भेजे मीडिएशन या किसी भी ADR, अदर फॉर्म ऑफ ADR जो कि एक्ट रिकॉग्नाइज करता है. साथ साथ ADR रूल्स में बता दिया गया है कि किस तरह आप इस प्रोफेशन का पार्ट बन सकते हैं, किस तरह आपकी एक्रेडिटेशन हो सकती है एज अ सर्टिफाइड मीडिएटर, और आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, आपने प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट करनी है. तो आई थिंक दीज टू पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ADR Act 2019 एंड द ADR Rules 2020, these are very comprehensive pieces of legislation, और इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ भी लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग. तो और साथ साथ आपने पूछा क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल केसेस भी आप ADR के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज मूव, क्योंकि बाहर हमने यही सुना था, और जब भी हम पढ़ते थे हम यही पढ़ते थे कि ADR जो है दैट्स ओनली यूज्ड फॉर सिविल केसेस, बट दिस एक्ट इनकम्पासेस क्रिमिनल केसेस एज वेल. लेकिन सर वो केसेस जो कि कंपाउंडेबल है, जिनमें सुलह हो सकती है, ठीक है, जो कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, उसमें तो ADR की तरफ जा ही नहीं सकते, बिकॉज उसमें सुलह जो है बेशक पार्टीज कर भी ले, वो कोर्ट जो है फिर भी उसे एंड तक, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे. तो आई थिंक जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ADR का जिक्र किया गया अंडर सेक्शन 345(2) जो CRPC का है, दैट्स अ ह्यूज थिंग. और मेरे ख्याल से कि दिस इज अ न्यू थिंग जो कि हमने पहले नहीं सुना था. मैं तो बचपन से ADR मतलब सब्जेक्ट में पढ़ता आ रहा हूँ, तो हमने तो सिविल और कमर्शियल और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन यही हम देखते थे. लेकिन आई थिंक दिस इज अ ह्यूज स्टेप. और फिर से लाहौर हाई कोर्ट ने बल्कि अभी एक और काम बड़ा जबरदस्त किया कि दे हैव एस्टैब्लिश्ड सेपरेट कमर्शियल कोर्ट्स एज वेल, जो कि कमर्शियल केसेस सुनेंगे. तो आई थिंक वहां पे इस एक्ट का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त तरीके से हो सकता है कि कमर्शियल मैटर्स को अगर वो इस एक्ट को लेके साथ उधर रेफर करना शुरू कर दें मीडिएशन में और आर्बिट्रेशन में, तो आई थिंक कि ये बड़ा जबरदस्त एक सीन होगा. और इससे देखें ना, पेंडेंसी आपके पेंडेमिक में एहसास नहीं होता हमें, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे तो रोजमर्रा के उसी तरह केसेस चल रहे हैं. लेकिन जो लिटिगेंट है, वो जिस बेचारे को 10 साल से उसका केस नहीं लग रहा और सुना नहीं जा रहा, तो आई थिंक जब वो उसकी वो जो एग्नी है वो हम शायद सही तरह फील नहीं कर सकते. तो आई थिंक उससे भी बचा जा सकता है मीडिएशन और ADR को जनरली यूज करके. वेरी नाइस उसामा, ये जो आपने हमारा मेरे ख्याल में लास्ट 5 मिनट की जो डिस्कशन है वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है और बहुत करेंसी भी देती है हमें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वक्त. जो एंड रियली अप्रिशिएटेड कि आपने जो हमें इस पे फिल इन किया. आयशा, ओवर टू यू. Thank you, Amita. Thank you, Sama. Really, it was very informative. We had a lot of questions. मगर वो हम end में सलमान साहब से भी पूछेंगे और उसामा से पूछेंगे. But one question I would like to answer right now. Somebody has asked on our Facebook page that the question is for entire panel. That do you think the current legal curriculum is equipping new graduates to become successful mediators in the future? So I would just start this thing and just say that जब ये webinar start हुआ तो I was talking about curriculum and what lacks in our legal education curriculum.
it's not, I won't say that it's completely equipped, but I would like to say that as Osama has said, that now we are on a, path. Now we know that what is the, what processes are there, what techniques have to be there, and what is our goal. So we are on a path. अभी तो curriculum इतना equipped नहीं है कि हम mediators, उनको successful mediators बना सकें students को, but awareness is the first step, and that's what we have been doing कि हम आपके साथ awareness sessions ये कर रहे हैं, इसीलिए कि a lot of people will join. Academia से हमारे पास लोग आए, convince हों कि mediation को as a subject वो अपने पास incorporate कर सकें. Anybody would like to comment on this? I would say कि देखो, the time has come कि अब इसको champion किया गया, legislation की support अब आ गई है, ये acts जो है ये definitely these would take us a very long way. Now there is serious commitment जो पहले हम feel करते थे कि कोई जो हम legal professionals के साथ बात करते थे कहते why should I leave my main line of work and come here? So now the promotion of this and the establishment of this as a separate profession is a very important milestone in this direction. I think this is amazing. So and to go back to your curriculum question, I think ये मैं park करूँगा question. Curriculum वाला will come back to this in our Q&A because if over to you, Aisha, again. You any other questions you want to address or you want to address right now? I think कुछ questions हैं जो कि summarize करते हैं. Probably they are pointing to that part of the webinar जो भी आप describe करेंगे, discuss करेंगे. So I think we'll leave the questions till the question answer session. And up to you, Ahmed Saab. I'm just trying to bring that thing back जो हमारा slide deck था, और ये बड़ा अच्छा हो गया इस हिसाब से कि ये जो चंद एक पॉइंट्स अभी रेज हुए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है वो लोग तो जो इन्होंने क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया है कि जी किन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है कि ये जो है उन्हें सूट करेगा कि ये मीडिएटर बने या उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, लेकिन जो इसमें दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि आप अगर मीडिएटर बनना चाहते हैं और if you are motivated to become one, what is it that you could focus on and what areas could work well for you? So recently I came across this and perhaps it is this: what is the secret for a mediator to get others to agree, right? And in Pakistan, we have that element of power. We'd like to go to authority figures. So that's why we had court annexed mediation as a successful exercise for reducing the pendency of cases where the judges were mediating. But at the same time, it was very difficult for them to separate themselves from that role of being a judge. तो वो जरूर था कि जी आप जो है you need to start thinking कि ये फैसला, तो स्टाइल्स ऑफ मीडिएशन वो मैटर करते हैं. मैं जो है उसमें अब आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या है. पहला तो ये है कि फैसिलिटेटिव मीडिएशन, दूसरा इवैल्यूएटिव मीडिएशन, और दोनों में फर्क है. फैसिलिटेटिव जो है वो इट्स अबाउट आस्किंग, इवैल्यूएटिव इज अबाउट टेलिंग कि आप किसी का डिस्प्यूट जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो आप फौरन उसको सोल्यूशन मोड में चले जाते हैं कि आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, आप ये क्यों नहीं सोच लेते. पहले वाला फैसिलिटेटिव ये है कि आपने फैसिलिटेशन की तरफ लेके जाना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मैनेज द प्रोसेस इटसेल्फ. और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे पहले भी मैंने बात की थी कि जो लॉयर्स हैं उनके लिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो मीडिएशन में आए या ना आए, उन्हें अगर फैसिलिटेशन स्किल के ऊपर वो अपने आप को ट्रेन कर पाए तो दैट इज अ स्किल दैट विल टेक देम ए वेरी लॉन्ग वे. द एबिलिटी टू बेसिकली control a process, keep it within limits, as well as making everyone a part of that process, because it's a collaborative process. और उसी में फिर ये है कि ये आप उसको इस तरफ लेके जा सकते हो जिसमें डिस्प्यूट्स रिजॉल्व. थोड़ी देर में बात करेंगे. एक मीडिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सवाल करना, आस्किंग क्वेश्चंस. और उस क्वेश्चंस में भी जो एक और एलिमेंट है दैट इज द वर्ड इफ.
अगर वो डाल सके। तो वो इफ का एलिमेंट है, क्वेश्चन करना है और अपने आप को डिटैच रखना है। इमोशनली आप इन्वेस्ट नहीं हो सकते किसी भी पार्टी के साथ। ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ कोर्स वो है जिसमें कोशिश ये होती है कि आप जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, इवैल्यूएटिव का और फैसिलिटेटिव का, कि यू get to a point where you are able to make an impact also, but that's a later stage. I am not a huge believer. I really think कि facilitative जो है वो अगर appropriately की जाए, जो कि hands off approach है, तो शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक इमेज है जो पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जरा ये सोचिए कि यहाँ क्या आपको नजर आ रहा है। There are two animals that have access to food, but how can they maximize their access to food? दोनों की अपने अपनी तरफ डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। They will pull at each other, दोनों नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर उसके बाद वो कोलैबोरेट करेंगे तो तभी जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ये एक नटशेल में दिस इज व्हाट मीडिएशन डज फॉर यू, दिस इज व्हाट कोलैबोरेशन डज फॉर यू, कि इट विल अलाउ यू टू मैक्सिमाइज द आउटकम्स, जो कि विन विन का हम पीछे बात कर रहे थे। किलमैन का जो मॉडल था वो यही था ना कि विन विन कैसे होगा। अब अगर आप ऊपर देखें तो आपको लूज विन, लूज लूज और विन लूज की सिनेरियोज नजर आएंगे। विन विन कहाँ नजर आ रहा है? लास्ट टू के अंदर। तो उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और इसी को सामने रखते हुए जो है एक चीज हमेशा हम एज मीडिएटर्स जब भी हम करते हैं, तो जब सवाल पूछ रहे होते हैं तो हम क्या सीखना चाह रहे होते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जो हम कई दफा सुनते आते हैं, जोपा इसका नाम है। दिस इज नोन एज अ जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। के सवाल करके हमने ये देखना है कि लोगों को चाहिए क्या है और कहाँ पे इनका एक पॉसिबली ये एग्रीमेंट हो सकता है। नहीं हो तो फिर आपको पता है हमारे पास अपने पाकिस्तानी तरीके भी हैं जो हम ढूंढ लेते हैं। तो मीडिएशन का जो प्रोसेस है उसमें हाउ डू यू मैनेज दैट प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। कि आप शुरू करते हैं मल्टीपल पार्टीज को, अलाउ देम टू ओपन, दैट्स एक्सप्लोरेशन फेज एंड द अंडरस्टैंडिंग फेज। आप उसके बाद उनका प्रॉब्लम, नीड्स और इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं। तो थोड़ी देर में मैं इसमें आगे कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम कर पाएं कि ये क्या चीजें हैं। फिर यू ब्रिंग देम टुगेदर आफ्टर इंडिविजुअल मीटिंग्स, और उसके बाद ऑप्शंस जनरेट करते हैं एंड देन यू गो टुवर्ड्स असिस्टेड नेगोशिएशन। याद आया शुरू में एक स्लाइड मैंने वर्ड यूज किया था कि मीडिएशन इज असिस्टेड नेगोशिएशन, कि आप कोशिश करेंगे कि वो कुछ उसमें उनका किसी डायरेक्शन में वो जा सके, नज कर सके आप उन्हें जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट में रहते हुए। अगर तो उनका एग्रीमेंट हो जाता है तो ऑफ कोर्स यू कैन रीच ए सेटलमेंट। एंड फिर सवाल आप लोगों के थे कि ये बाइंडिंग कैसे करेंगे। तो बाइंडिंग के लिए तो हमने हमारे सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म ये है कि यू गो टू द कोर्ट एंड गेट अ डिक्री। कौन लोग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ए क्वालिफाइड पर्सन हु इज अ थर्ड पार्टी न्यूट्रल। मीडिएटर की चेकलिस्ट क्या है? वो क्या देखेगा? वो लोगों से उनके इंटरेस्ट और हिडन एजेंडा समझने की कोशिश करेगा। वो ये भी देखेगा कि इनकी आपस की रिलेशनशिप कैसी है और पार्टीज के बेटनास क्या है। बेटना another technical term that we use in negotiation, that is the best alternative to a negotiative agreement। के कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद वो कहेंगे नहीं जी अब यहाँ हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सकता, हम उठ के जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा या परसों के एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही थी जिसमें इंडियन जो उनका था डेलीगेट, उसने प्रोटेस्ट किया कि जी पाकिस्तान ने जो मैप लगाया वो हमारे जो है वो उसकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, इट शुड बी टेकन डाउन। नोबडी गिव हिम दैट हेडवे, सो ही वॉकड अवे फ्रॉम दैट मीटिंग। वेदर दैट्स गुड और बैड इज अ सेपरेट इशू, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हर किसी को ये पता है कि हाँ जी मेरा यहाँ पे ये एक वॉक अवे पॉइंट है, उससे ऊपर ऊपर थ्रेशोल्ड के जो है मुझे अगर ये कोई सेटलमेंट होती है तो इसमें रहना है। क्या उनके अपने आइडियाज है कि कैसे वो सेटल करेंगे। उसके अलावा ये है कि आपके उसको ऑब्जेक्टिव कैसे रखा जा सकता है सब्जेक्टिव की बजाय, आप क्या स्टैंडर्ड्स एडहेयर कराएंगे। व्हाट आइडियाज डू यू हैव फॉर अ सेटलमेंट दैट माइट कवर एंटायरली। क्या आप पार्शियल सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं कि हाँ जी इन इश्यूज को रिजॉल्व कर लें, बाकी इश्यूज के लिए आप कोर्ट चले जाएं।
ये तो हो सकता है ना, छोटी मोटी चीजें भी हो सकती हैं। एंड इफ यू एंगेज इन रियलिटी टेस्टिंग, व्हाट विल यू से टू दोस पीपल? तो ये किसी भी मीडिएटर के लिए जो है, जब वो होता है तो वो अपने आप को इन चीजों पे असेस कर रहे होते हैं। हमने जो स्टेजेस थे, मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ, यही स्टेजेस दोबारा एक और तरीके से, यू सेट द टेबल, यू डू स्टोरी टेलिंग, यू डिटरमिन द इंटरेस्ट, you set out those issues, you brainstorm the options, select the options, and then you close the mediation. So that's just the cyclical process there. Challenge क्या है? चैलेंज ये है कि आपको लोगों की पोजीशंस तो नजर आ रही होती हैं दो एक किसी भी डिस्प्यूट में, आपको ये नहीं पता कि उनकी अंडरलाइंग नीड्स और इंटरेस्ट क्या हैं, क्या चाहते क्या, और what is it that they really want out of this? What will be their walk away point? And this is like an iceberg. You only see the surface or the tip of the iceberg. You don't know what's really happening. And that's a challenge for a mediator to dig deep. और यही वो सवाल पूछने वाला जो एट्रीब्यूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल के अलावा जो चीज है वो है यहाँ पे कि कोई भी अगर फैसिलिटेशन आप कर रहे होते हैं तो उसमें ये एक कोट जो मैंने लिखा है कि 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 90% इज ड्यू टू रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। हम जिस कल्चर में रहते हैं कई दफा ये चीज उसमें रोल प्ले कर रही होती है कि जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंस ऑपिनियन की वजह से वो एस्केलेट हो रहा हो, वो किसी और चीज की वजह से एस्केलेट हो रहा होता है। हमारा रोल एज ए मीडिएटर, लेट्स जस्ट लुक एट ईच वन ऑफ दीज। हमें लोगों को देखना है कि ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे इकट्ठे करनी, लोगों से क्या सवाल करने हैं, क्या किन चीज़ों पे हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, कौन से स्टेप्स नीचे हो सकते हैं, और ये भी है कि हम रियलिस्टिकली उनको बताएं। जब हम मीडिएशन में जाते हैं आमतौर पे तो एक ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमारे पास आए हैं तो वो ट्रस्ट जरूर कर सकें, इस बात पे कर सकेंगे जो वो हमसे शेयर करेंगे। अगर आइसोलेशन में करते हैं तो उनकी इजाजत के बगैर दूसरी पार्टी को हम वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है जो उसामा ने भी बात। और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप कितना अटेंटिवली को सुन सकते हैं, और उसमें बार बार कम्युनिकेशन का जिक्र बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम एक्टिव लिसनिंग की बात कर सकते हैं, उसमें अपनी आर्टिकुलेशन की बात कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी टू लिसन फॉर नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज to go dig deeper and find out what is really going on is going to play a huge role over there. तो ऐसी सूरत में दो चीजें जो आपके सामने मैंने ऊपर लिखी, EQ एंड CQ। EQ बहुत ज्यादा आजकल इस्तेमाल होता है, दिस इज इमोशनल क्वोशंट, और कहा जाता है कि इस वक्त इमोशनल क्वोशंट भी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कि किसी भी प्रोफेशन में इस वक्त सक्सीड करने के लिए एक बहुत वैल्यूएबल एट्रीब्यूट है जिसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस नर्चर भी की जा सकती है, कुछ लोगों के अंदर जरा बेहतर एबिलिटी होती है स्टार्ट में, लेकिन ओवर टाइम दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डेवलप। इट्स मोर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आपकी अवेयरनेस क्या है, आप कितना अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, what level of empathy do you have for others, क्या are you capable of putting yourself into the other person's shoes and finding out कि वो क्या चाह रहे हैं, what is your motivation level for resolving those disputes, आपका emotional intelligence में how motivated are you to get things moving, why would you come into certain line of work, उसके अलावा आपकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, और आप सेल्फ रेगुलेट कैसे कर सकते हो। 4-5 एट्रीब्यूट हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है वो है कल्चरल इंटेलिजेंस या कल्चरल एजिलिटी की हम बात करते हैं। हाउ केपेबल आर वी टू डील विद सिचुएशंस एंड बी सेंसिटिव अबाउट देम। The whole of Pakistan was up in arms recently over that unfortunate incident on the motorway. Now this person who was head of the law enforcement here gave a statement that was tone deaf, not without even realizing what impact that person's statement was having. But that's where we need to bring in that cultural sensitivity of finding out कि क्या context है situation का, what is an appropriate way of handling or addressing those issues where it will not ruffle any sensitivities. And that is something we don't realize.
that person may have been well-meaning, but the way things were communicated, it really came out very, very bad. It made him look like a person who should not have been in that place at all. So now this is an important attribute. आप एक dispute resolve कर रहे हैं और आप बैठ के parties में किसी को भी ऐसी statement देने के लिए आप तो जो है, and I'm not going to specify anything, but just imagine, put yourself in that situation where you kind of have a judgmental statement or you trigger something. So you have to be very, very mindful in those scenarios कि जी आप इसको कैसे adjust करना चाह रहे हैं. एक सवाल और जो मैं आप लोगों की तरफ, क्या जो dispute mediation की तरफ आता है, और ये कार्टून भी इसी की डिपिक्शन है, how much time and effort should be spent on resolving that dispute? क्या शुरू में हमें डिटरमिन करना चाहिए कि हम इतनी देर के लिए कोशिश करेंगे, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो वी वॉक अवे, और हम गुड फेथ एफर्ट करेंगे? तो थिंक अबाउट दैट. It cannot be an indefinite effort. There is definitely cost involved. There is definitely time involved, and of course, like I said, ये good faith effort है किसी भी dispute को resolve करने के लिए. तो आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा mindful होना जरूरी है. I have a couple of things that I say, and just trying to keep it light. Understanding perspective is a very important thing here. Or as a mediator, if you cannot develop that perspective, it becomes really difficult. I am going to go towards a slightly early thing. One of the books that we used for our curriculum was this book, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution. This is a UK-based curriculum which applies and transfers very well to our curriculum here in Pakistan as well. We used the 3rd edition at the time. Now we have the 5th edition that's available. And this is one of the most comprehensive textbooks if you want to pursue it as a student or even as a newcomer to this. We talked about Christopher Moore's model in the beginning, the mediation process की किताब. लेकिन इस COVID में ये किताब आई Alexandra Carter की Ask for More, 10 Questions to Negotiate Anything, and she is the director of Columbia Law School Mediation Clinic. So it is a very interesting book that I would recommend to all of you to really go through because it sets the tone for that. जिसमें वो ये कहती है कि जी negotiation जो है वो एक fundamental stepping stone है किसी भी dispute को resolve करने के लिए, और mediation उसके अंदर एक ऐसा mechanism है जो non adversarial है, जो एक good faith effort है. अगर और उसके नताइज वर्ल्ड वाइड जब हम देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव हैं. बहुत सारे मुल्कों ने जो है बहुत कॉन्शियसली एफर्ट की है इसके लिए. पाकिस्तान में एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी ओवर द पास्ट 4 years कि हम काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड कवर कर चुके हैं और इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा. तो अगर आज हम ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं तो ये एफर्ट आज से 4 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें हम मुझे याद है कि लाहौर में हमने जो है एक सेमिनार होस्ट किया जिसमें बहुत हॉस्टिलिटी भी थी फ्रॉम फ्यू सेक्शंस, जिसमें लोगों को पता भी नहीं था इस चीज़ का कि ये प्रोफेशन जो है बन भी सकता है, या उनका यह ख्याल था कि बस ये कोई ऐसी चीज़ नहीं. So there are a lot of people who have done a lot of work which needs to be appreciated, and also those efforts need to be now taken to the next step. I'm very happy to see and hear from Osama जो developments हुई हैं और जिस pace पे, because 2018 में हमने जो उस वक्त जस्टिस अनवार थोड़ी देर के लिए आए थे एक एफर्ट की कि हमने यहाँ पे 75 जजेस के साथ मिलके एक रेफरल मैकेनिज्म के ऊपर काम किया, और वो मैकेनिज्म जो है वो हमने उसके लिए आयरिश मॉडल भी स्टडी किया, हमने इटालियन मॉडल भी स्टडी किया, और उनके साथ एक कोलैबोरेटिव फोकस ग्रुप एक्सरसाइज के साथ वी हैड 3 सेपरेट वर्कशॉप जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक वो रेफरल मॉडल को हमने बिल्डअप करना शुरू किया कि कोई भी एक केस जब आता है कोर्ट के पास
तो उसको हम बजाय इसके के वी सेंड इट टू लिटिगेशन, उसको एक्सेप्ट करने से पहले हम उसको रेफरल के लिए मीडिएशन की तरह, और कौन से केसेस क्वालिफाई करेंगे, उस वक्त जो लेजिस्लेशन 2017 में आई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, और 2018 में दिसंबर में वी हैड दैट एक्सरसाइज. Aisha and Osama were also part of those focus group discussions, जिसमें we gathered a lot of important information from that exercise. Unfortunately, over the past year, we were, I would say, sort of sidetracked, because since December 2018, we've been doing a number of things, but and especially with over the past 6 months with COVID, things have really gone sideways. But I'm actually very happy to see that this is a rejigging of those efforts, and hopefully this spotlight series will go in a certain direction where we foresee some good things happening. Over to you, Aisha, for this. But I do have some more pictures of my beautiful town. I'm just trying to shamelessly promote my town here. Wonderful. It's wonderful. I'll go back to the pictures. Few questions, Ahmed Saab. Questions ले लें फिर हम. Questions ले लें, बिल्कुल. Is Osama still with us? Yes. Yes, I am. Yes, I am. I'm here. Oh, we'd like to see your beautiful face again. Okay, sure. Here you go. Thank you. Okay. So one of the questions is that people are reluctant in following ADR. How can we convince people to go for ADR instead of litigation? I'll go back to the slide I showed in the beginning, right? वो था कि litigation जो है, it's time consuming, it is financially intense, and you lose control, right? So and if you don't have control, आपका वकील है और उसको अपनी इंटरेस्ट है, वो तारीखों पे तारीखें डालते जाएं, तो आपका तो वो मीटर चल रहा है ना. So this is the crude way of saying this, but other than that, this is going to be another person who is going to decide on your behalf, and you do not have much of a say there. इस process के अंदर जो है आप बैठ के अपनी जो है एक good faith effort करते हैं, और इसमें एक चीज जो हमने नहीं डिस्कस की वो ये थी कि क्या आप अपने लॉयर्स के साथ भी बैठ के कर सकते हैं मीडिएशन एक्सरसाइज. इज इट ए 4-way प्रोसेस जहां पे आपका भी लॉयर होगा, दूसरे का भी लॉयर होगा, और आप को यानी कि दे विल आल्सो बी एडवाइजिंग यू थ्रू दैट प्रोसेस, या आप बगैर लॉयर के जाएंगे. both scenarios are possible, लेकिन eventually cost is one driver, fairness is another, time is one of the biggest driver, because if you try doing this and if you can walk away with a settlement that is agreeable to both parties, just imagine the pressure that it takes off from the legal system or the judicial system, right? And our courts pendency की बात की थी उसामा ने. उसामा, कितनी pendency अब चल रही है? I don't know the exact figures, Ahmed Saab, but I think कि total 90,000 या lakhs में भी चली गई है अगर आप total pendency लगाएं, considering the pandemic. अभी तक recent figures नहीं आई, लेकिन Supreme Court की above 1 lakh चली गई, सिर्फ Supreme Court की ही. ठीक है, तो that's a huge number. Plus आप कह रहे थे कि कौन who can go for mediation, parties either directly जा सकती हैं या कोई काउंसिल के थ्रू जाएंगे. तो ये भी वही yet again मैं कहूँगा कि जो 2019 का एक्ट है पंजाब का, दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन, और उस पे सेक्शन 11 एग्जैक्टली इसी पे बात करता है कि पार्टीज डायरेक्टली इफ दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर तो दे कैन गो डायरेक्टली, और दोनों पार्टीज आपस में बैठ के मीडिएशन कर सकती हैं. ऑब्वियसली मीडिएटर एक अपॉइंटेड होगा बाय द कोर्ट और बाय द चॉइस ऑफ द पार्टीज. उसके अलावा पार्टीज अपने काउंसिल के थ्रू भी जा सकती हैं, और काउंसिल उनके दोनों साइड से वकील पेश हो सकते हैं और वो उनको असेस कर सकते हैं. तो आई थिंक इट सोनली डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ पार्टीज. और इसका एडवांटेज एक जो मेरी नजर में है कि लिटिगेशन से ज्यादा, वो ये है कि इट्स द फ्रीडम दैट द पार्टीज एंजॉय. कोर्ट में जाके तो एक सेट रूल्स हैं, एक सेट प्रोसीजर है, उसके थ्रू आपने जाना है. इफ यू गो फॉर एडीआर तो द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस कि आपने खुद करनी है, आप खुद कर लें. आप वकील को लेकर जाना चाहते हैं, वकील को ले जाए. अगर आप किसी सेंटर से कराना चाहते हैं, आप वहां से करा लें. तो दैट्स अ लॉट.
तो वो मेरे ख्याल से हमें लिटिगेशन में नहीं मिलता। तो पेंडेंसी का भी इस पे इफेक्ट आएगा कि वो भी कम हो जाएगी अगर इसका प्रॉपरली यूज हम करना शुरू कर दें। और वकीलों का भी इस पे ट्रेनिंग होती रहेगी, क्योंकि देखिए जब एक चीज आएगी तो तभी लॉयर्स उस पे काम शुरू करेंगे। अब साइबर क्राइम एक जमाने में अगर आप इफ यू गो बैक टू 2010, तो नो वन न्यू अबाउट साइबर क्राइम इतना ज्यादा, और इतनी ज्यादा लोगों की साइबर क्राइम की प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो आफ्टर द एक्ट जब पीका आया 2016 में, उसके बाद से आप देख लेंगे साइबर क्राइम में कितने ज्यादा लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर प्रोफेशनल्स, वकील हैं वो, और वो सिर्फ साइबर क्राइम के केसेस ही लेते हैं। तो आई थिंक इसी तरह चीजें डेवलप होती हैं, और अगर ये मीडिएशन भी और एडीआर भी आगे चलेगा तो आई थिंक वी विल हैव स्पेशलाइज्ड लॉयर्स हु विल डील विद इट। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज थिंग, और इसको अगर आगे लेके सही तरह जाया जाए तो बड़ा इससे कोर्ट्स का भी वर्कलोड कम होगा, और आपका लिटिगेशन भी जो है, आपके वकील भी स्पेशलाइज्ड मीडिएटर्स बन जाएंगे, और आपके जो लिटिगेंट्स हैं उनको भी स्पीडी, एफिकेशियस और एक्सपीडिशियस जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल। और इसी में सवाल ये पैदा होता है कई दफा कि जो रेवेन्यू मॉडल है वकीलों का, वो भी ऑफ कोर्स मीडिएशन के लिए भी तो वो चार्ज करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, और एग्जैक्टली। उसमें सो कई दफा ये बैड फेथ स्टेटमेंट पास होती है व्हिच इज लाइक स्टीरियोटाइपिंग कि जी दिस विल नॉट बी सपोर्टेड, बट आई थिंक वी सी सम वेरी पॉजिटिव सपोर्ट इन दिस, एंड आई एग्री विद यू के एज ए प्रोफेशन जब ये डेवलप होता है तो वील हैव लॉट ऑफ स्पेशलाइज्ड पीपल कमिंग अप जो कि इसके लिए they will really facilitate this process as well. I'm using that word over and over again, but that's what's supposed to happen now. Exactly. Yes. We have an interesting query. That how can young lawyers contribute his services for the promotion of ADR? अच्छा, What's it there for young lawyers? यंग लॉयर्स, आई थिंक सबसे पहला काम तो अवेयरनेस। यंग लॉयर्स कैन स्प्रेड अवेयरनेस, दे कैन कन्विंस देयर सीनियर्स कि जी हम इस ये मामला ले सकते हैं, और प्लस दे कैन कन्विंस देयर क्लाइंट्स एज वेल कि वो जी आप एडीआर एक्ट आ गया है, आप उसके अंडर मीडिएशन की तरफ हम क्यों नहीं जाते, और दे कैन कन्विंस देयर क्लाइंट्स, दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट मीडिएशन प्रोसेस एज वेल। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मीडिएशन के लिए भी काउंसिल ऑफ द पार्टीज जो हैं वो साथ हो सकते हैं बिल्कुल, और उनकी मौजूदगी में हो सकती है। तो इफ यंग लॉयर्स can pursue and basically convince their clients कि जी हम बजाय ये कि कोर्ट में आपका केस साल भर चलता रहे या 5 साल चलता रहे, क्योंकि majority of the lawyers जो हैं वो one off fee लेते हैं for the court cases as well। तो बेशक वो 6 महीने में खत्म हो जाए, बेशक 5 साल लग जाए, फी आपकी majority की one off ही होती है, जितनी मर्जी आप चार्ज कर लें, डेट डिफर्स। लेकिन अगर आपका एक वन ऑफ फी चार्ज करके मीडिएशन में मामला खत्म हो रहा है 60 दिनों में, तो आई थिंक ये यंग लॉयर्स के लिए बड़ा जबरदस्त सीन है, और वो ज्यादा से ज्यादा अगर अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करें कि हम जी ये रूट लेते हैं, तो आई थिंक दिस विल बी अ ह्यूज एडवांटेज फॉर द लॉयर्स एज वेल एंड फॉर द क्लाइंट्स एज वेल। और उसको अपने सीनियर्स को भी वो कन्विंस कर सकते हैं कि जी इस मामले में बात करें, क्योंकि अवेयरनेस आई थिंक एट दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक फिर वंस अवेयरनेस इज देयर तभी फिर आप स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग भी होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक जुडिशियल एकेडमी में, पंजाब जुडिशियल एकेडमी में जिस तरह जजेस की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह उसी मॉडल पे बार काउंसिल्स में लॉयर्स और यंग लॉयर्स की भी स्पेशली ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड देयर इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि पंजाब बार काउंसिल में एस्टैब्लिश तो हो चुका है, लेकिन इट हैजंट स्टार्टेड वर्किंग एज ऑफ येट। तो मेरे ख्याल से उधर मीडिएशन शुड बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, ताकि स्पेशलाइज आपके मीडिएटर्स जो हैं वो भी आगे बढ़े, और वो भी एज यंग लॉयर्स आगे आए, वो शुरू से ही वो कस्टम होंगे इस सिस्टम को। अब एक 70 साल के बाबा जी जो वकील हैं, उनको कन्विंस करना इस तरफ जिनकी पूरी जिंदगी गुजर गई है एडवर्सरी सिस्टम में, वो ज्यादा मुश्किल होगा। एक नए जो यंग लॉयर है जिसकी अभी वकालत स्टार्ट हुई है, उसको कन्विंस करना आई थिंक ज्यादा आसान होगा। तो मेरे ख्याल से वी नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल। थैंक यू उसामा। आई लाइक टू ऐड, और ये इसमें बड़ी अच्छी बात की आपने कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम है, मेरे ख्याल में यंग लॉयर्स को इस वक्त अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। They need to expose themselves to getting trained on this, and of course उसके साथ साथ इनको एडवोकेट बनना पड़ेगा इस चीज का कि ये जाके इसको प्रमोट करें, और they need to champion this cause. I think one of the things awareness के साथ साथ ये भी है कि जो हमारा, जिस तरह हमने ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेड प्रोग्राम में ये ऑफर किया था,
So these are our champions we are anticipating जो पिछले 1-2 सालों में जो जाके इस चीज के ऊपर अवेयरनेस भी क्रिएट करें, जो उनका एक्सपोजर भी है और वो बिल्कुल जो है इस पे हमें हेल्प कर सकते हैं. Their focus on talking to their clients and presenting this as a viable option for dispute resolution. Because वो trust element जो है वो उसमें आते आते अगर of course if they can quickly, मेरा उसामा ये सवाल है कि जो आपने criteria बताए थे for accreditation, is there a criteria for junior lawyers as well right now to come into this field? Junior lawyers का accredited mediators बनने के लिए तो अभी they need 10 years of standing. लेकिन वही बात की कि apart from being an accredited mediator फिर आप mediation process पूरा conduct करोगे, लेकिन आप उसको assist तो कर सकते हो on behalf of the client, उसमें तो there's no limit, ठीक है. तो I think उसके लिए तो इनकी है लिमिट कि 10 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए as per the 2020 rules. लेकिन जो असिस्टेंस है, जो कि अगर आप अपनी क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे जाके उस मीडिएशन का पार्ट बनते हैं टू असिस्ट द होल प्रोसेस, उस पे देयर इज नो लिमिट, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं. So as a junior lawyer, of course, there's a path to becoming a mediator right now. Lekin you could be assisting a mediator also. Is that something that's ये भी हो सकता है कि आप parties के साथ तो अलग है, लेकिन जो articleship वाला process है कि आप definitely जो है वो देखिए ना, जैसे अगर ADR centers बनना शुरू हो जाते हैं जैसे rules में कहा गया है, तो उसके हिसाब से आप वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं. अगर आप बेशक खुद नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा कैरियर पाथ इस पे तो अनलिमिटेड है, और इस पे मतलब कोई लिमिटेशन नहीं आप लगा सकते कि आप सिर्फ मीडिएटर ही बनोगे. वो तब आप बन जाओगे, लेकिन अच्छा वो भी एक स्किल है. हाँ, that's just one part. लेकिन अगर if you start from the beginning, अगर आप शुरू से अपने कैरियर के स्टार्ट से ही उस तरफ चले जाते हैं, तो आई थिंक आपको जब तक आपके 10 साल पूरे होंगे तब तक you will know each and everything there is to know about ADR. Very nice. मेरा एक अता साहब अभी ब्लैंक हो गए. अता साहब वापस आइएगा. ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो ए पार्टनर इन दिस एफर्ट, जिन्होंने अता साहब डीन है लॉ स्कूल के, और इन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ये इम्प्लीमेंट किया. तो अब ये मेरा सवाल आयशा आपसे भी है और अता साहब से भी है. Is there some a possibility कि आप लोग कोई क्लिनिक सेटअप करने के बारे में सोचें मीडिएशन का, जो कि आपके सीनियर स्टूडेंट्स ऑफर कर सकें? प्रो बोनो भी हो सकता है, फॉर पे भी हो सकता है, जहां पे लोगों को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके. जी बिल्कुल, ये एक प्लान जो है नादरा हसन लॉ डिपार्टमेंट का, इट्स इन द पाइपलाइन. वी बीन वर्किंग ऑन दिस, दैट हाउ टू सेट अप लीगल क्लिनिक. कुछ हमें कुछ फंडिंग असिस्टेंस भी हमने फिगर आउट की हुई है इसके लिए. थोड़ा सा इशू अहमद साहब इसमें हो जाता है कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन. अब डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे. एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द लॉयर्स एंड स्टूडेंट्स. अभी हमारा जो सिस्टम है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई ओन डिपार्टमेंट, इट्स वेरी न्यू बिकॉज वी जस्ट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 2014. But still legal clinic का plan हमारा, it's all set, it's all ready, it's thematic legal clinic. We do have certain funding support as well. So we are looking into intricacies and technicalities that how we can make it running, because हम clinic establish तो कर लेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर काम और focus कर रहे हैं कि उसकी sustainability पे. So yes, it is there. It's in the pipeline. The plan is ready. We just have to look into few details before set it running. Over to you, Dr. Saab. Dr. Atta, please. Thank you. We have made a plan. Last semester, we ran their law clinics as well. And for the senior students, law training as well, and the course has also been incorporated in our syllabus. Now, in next 5 years plans, we have planned to establish an ADR center here in the federal capital. Our law department is planning that. Further, we have sent a project to the HEC, and initially it has been approved as well for the setup of ADR center. We are working on it, and hopefully we will be successful, inshallah. That is encouraging news, Atta Sahab. Thank you very much for that, and it's good to hear your voice. It's been a while now that we communicated, but
thank you. No, this credit goes to Ahmad Salman. You initiated this. No, I did remember not. that training to our I'm faculty just by you. somebody who got your support to get this done, guys. You know, it's and you know, I'm really grateful for and also honored to have met people who are actually working on this. And this now it has become a movement, I would say. It wasn't before, where we had to go and explain it at every forum, but I would like to acknowledge the efforts of a lot of people in this regard, especially Justice Mansoor, who initiated this, and of course the support that we get from the Asia Foundation. But it would not have been possible without the law schools jumping on board and really taking up the curriculum we developed and you know, working through those problems. Because I've been talking to you, it's been a very intense and learning exercise for you guys as well. Now you guys are the experts, so I'm so happy to see it from the sidelines. Thank you, Amitabh, for encouraging words. Yes, it has become a movement now, and we all are happy and glad to see that everybody is at the platform. We can see lawyers over here, academia is here, student body is here, civil society has joined us. So yes, the future is bright for mediation, and we will see a lot of progress in it. We have few more questions. I'll just take 2 or 3 questions more before calling it a day. There's a question that it is talked about that ADR laws are there, but there is lack of training centers and lack of compulsory standards for practice. So don't you think that you know, it undermines the basic concept of ADR? अगर proper procedure या proper process नहीं होगा या lack of training centers हैं, वो कहीं ना कहीं ADR को undermine कर रहे हैं. I would partially agree with you, and partially say that this is a process that's already started, right, with the recent legislation. We don't have that. There was an effort to set up those ADR centers. Private sector में भी effort हुआ, और कुछ लोग इस वक्त इसको ज़्यादा comprehensively कर रहे हैं. Visibility कम है, and I would recommend through your sources, in fact, that you know, it has to be highlighted the good work that is being done or has been done before in this regard. I don't think we have done a very good job of spreading that message effectively. Like I said, पिछला 1 साल जो है, हम लोग थोड़ा सा जो है इस momentum को carry नहीं कर पाए जो हमने build up किया हुआ था. So hopefully in the next 5 years we will see a lot of progress where we can show tangible places. मैं अभी broad strokes में answer दे रहा हूँ. Professionalism की जहाँ बात होती है, तो having those standards as in the legislation now is a very good step. That's something that really helps us move towards professionalizing this. और कोई भी जो profession जब शुरू होता है, तो उसमें of course teething problems भी होते हैं, उसमें आप और भी चीजें हो सकता है कि ये 10 years की बजाय they might be pressurized to bring that experience limit down if you have people who are experiencing it earlier. It could be somebody who is not from a legal profession. Like I'm not somebody who has a legal profession background. I come from a corporate background into this particular thing. So that's another thing where people don't realize that it's not only just the legal professionals who would be working as mediators. It could be people from other areas as well. So when we talked about civil servants, like Osama mentioned, civil servants जरूरी तो नहीं कि legal profession से आ रहे हो. उनका एक public service का background है, and they have those competencies and skill sets to bring to it. So that's something to keep in mind there as well. Just one last question, Amit Saab. That is that there is a question that what do you think is the most misunderstood aspect of ADR? Most misunderstood. I think people think it's a panacea, that it can fix things where we have to take it with a pinch of salt, right? It's a good faith effort. And there is the champions or advocates of ADR sometimes overhype it as well, saying कि ये जो है इसी तरीके से हम dispute resolve कर सकते हैं.
it has to be the most appropriate method that we can use for that dispute resolution, right? So वो appropriateness जो है वो बहुत ज़रूरी है. There are certain instances जहाँ पे आपको adversarial process में जाना पड़ेगा. There are always scenarios जहाँ पे I think this is a very soft, humanistic approach where you can resolve disputes. लोगों की egos को, उनकी dignity को intact रख सकते हैं. Because court के अंदर, of course, you come across all sorts of people. और हमारे यहाँ जो लोगों का जो emancipation level है या education level नहीं है, they're not sometimes treated with that, and perhaps this is a not necessarily very positive statement, but you know, we need to start treating people who are in disputes as humans. वो जो एक सॉफ्ट एलिमेंट लाने की जरूरत है वो इससे जरूर आता है, और वो लोगों को अभी शायद समझ नहीं आती, प्लस हम ट्रस्ट नहीं कर पाते. तो वो ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो बहुत जरूरी है कि और इसमें ऑफ कोर्स देयर आर पिटफॉल्स हियर एज वेल, देयर आर डिसएडवांटेजेस जो हम अपने अगले सेशन में जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी, व्हाट आर द पिटफॉल्स हियर जिनको हमें एड्रेस करना है. Very true, very true. Thank you so much, everyone, for joining us for today. And it was such an informative session. And we are just winding it up and just concluding with the positive thoughts that mediation campaign is, is thriving, and the movement is there. Everybody is on board, and everybody agrees that ADR should be the appropriate dispute resolution mechanism. I'm thankful to the team of Asia Foundation, Mr. Zishan, Ms. Rubina, Mr. Hamza, Mr. Abbas, and our speakers, M. Salman Saab, for such an informative insight, and Osama Malik, who has done brilliant work and has actually, just set the pace and tell everybody that what laws are here. This is the first session of our webinar series, and the second session will be announced very soon and will be shared with you. And I hope to see more and more people committing themselves to this movement of mainstreaming mediation and helping this legal fraternity to grow better and progressive. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Aisha. Thank you, Ahmed Saab. God bless you all. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Aisha. Thank you, Sir Thank Ahmed you, Salman. Osama. It was very nice. In fact, learning from all of you. I would just like to add one little thing before we call it a day. So, Aisha, you talked about challenges, right? I think one of the biggest challenges we are having to face, and we continue to face, is the sensitization of legal fraternity, which is also very important because they got to understand that ADR is not something that takes away a chunk of their income. It's something that contributes to what they're trying to do in a more efficient way, and that sensitization is very important. You see, without ensuring the buy-in from lawyers, I think we can't really do it. So I see that as one of the major challenges, but we'll overcome that, inshallah, in the days to come. Thank you. Yeah, you're very right. This is one of the challenge, but definitely as things have set in motion, so we can see positive and good results from it. Thank you so much, Aisha. everyone. Thank you. Thank you. Thank you very much. Great day. Allah Hafiz. Uh,